We thank the Lord once again for everyone who's joining us right now on this Sunday service. हम एक और बार सभी का स्वागत करते हैं जो इस परिवार के सर्विस के लिए जुड़े हैं। I know God is doing wonderful things through everyone's life with joining us. परमेश्वर अद्भुत कार्यों को कर रहा है जो कुछ भी इस सेवकाई इस प्रार्थना में जुड़े हैं। And the word is powerful and is changing lives. परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है और जीवनों को व्यक्तियों को बदल रहा है। And we've been studying the past few weeks about Gideon and how God used him to do a mighty work. पिछले कुछ दिनों में हम गिदियन के बारे में पढ़ रहे हैं जिसको परमेश्वर ने अति सामर्थशाली कार्यों को करने के लिए उपयोग में ला रहा। The title we have given is With God, Less is More. हमारा जो शीर्ष हमने इस वचन के लिए दिया है, परमेश्वर के साथ संबंध में जो कम है वो बहुत ही अधिक है। In other words, the small things of God are powerful enough to bring down the great things of the world. दूसरे शब्दों में परमेश्वर के साथ छोटे से छोटे चीजों में या फिर सामर्थ्य में परमेश्वर के साथ जुड़े तो वो शक्तिशाली बन जाता है। You know, there's something special about God the Creator. परमेश्वर सृजनहार के संबंध में कुछ अति श्रेष्ठ बातें हैं। And the interesting thing about God the Creator is that He is someone who can create everything from nothing. परमेश्वर सृजनहार के बारे में ये श्रेष्ठ बात है कि कुछ भी नहीं, शून्यता में से सब कुछ को सृजा सकता है परमेश्वर। So if the one who created this world out of nothing can create you and me, don't you think he can make you something wonderful and great just by being part of your life? ओ सृजनहार परमेश्वर जो शून्यता में से सब कुछ सृजा सकता है, क्या वो आप और मुझे जब हम समर्पण करके दे तो हमें कुछ श्रेष्ठता में नहीं उपयोग कर पाएगा? I believe sometimes we forget the power of the Creator. कभी कभार या फिर हमेशा हम भूल जाते हैं कि उस सृजनहार की सामर्थ्यशाली शक्तियों के बारे में। We forget about the things that Jesus did while he was on earth. हम भूल जाते हैं कि मसीह ने इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने क्या क्या किया। He took two fish and 5 loaves of bread and fed 5,000. 2 मछली और 5 रोटी को लेकर उन्होंने 5,000 को पोषित किया। So just as we are studying in the life of Gideon, we are seeing that God actually wants to make sure that first we are nothing, so that everything we become is thanks to him. गिदेन के जीवन से हम ऐसा पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमें कुछ नहीं करवा कर उसमें से कुछ श्रेष्ठता से हमें उपयोग में लाना के लिए चाहता है। Very clearly understood that when God told Gideon that his army of 32,000 was too big, the purpose behind it was because God knows that once he gives us the victory, we will take pride in our own strength. 32,000 की सेना कुछ भी नहीं और ज्यादा है, परमेश्वर ने कहा, क्योंकि एक बार हमें विजय मिल जाए तो हम उसमें अपनी श्रेष्ठता लेंगे, हमारे बल के बारे में हम कहेंगे। We saw that Gideon was fighting an army of, he was fighting 32,000 against 135,000. 32,000 लोग 1,35,000 लोग का विरोध या फिर सामना कर रहे हैं। And after that, God took that 32,000 army before the battle and he reduced it to 10,000. और 32,000 में से परमेश्वर ने उसे छोटा कर 10,000 करवाया। And even then, God said it is still too big. फिर भी परमेश्वर ने कहा ये अभी भी अधिक है या फिर ज्यादा है। In other words, the miracle I want to do, I want it to be so special that everyone once and for all will know who the children of God are. मैं वो अद्भुत कार्य इतना ऐसे करना चाहता हूँ कि लोग अचंभित हो जाए और जाने कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है।
See, God wants to make sure that everything that is done in your life is so supernatural that people will say, I have to believe in the God of this person. परमेश्वर हमेशा ऐसे कार्य करेगा आपके जीवन को देखकर लोग अचंभित हो जाए और कहे कि सर्वशक्तिमान श्रेष्ठ परमेश्वर ने इस अद्भुत कार्य को किया है आपके जीवन के द्वारा। So I want to encourage you with this right now. मैं आपको उत्साहित और प्रोत्साहित करना चाहता हूँ इसके द्वारा। The greater the mess in your life right now, the greater the miracle is going to be for everyone to see. कितना बड़ा समस्या या फिर प्रश्न में आप हो, उतना श्रेष्ठ चमत्कार परमेश्वर करेगा ताकि आपको एक गवाही बना सके। The greater the lack you have suffered in life, the greater the abundance you are going to experience. आमीन। जितनी कमी आपने जीवन में महसूस की हो, उतनी आशीषें परमेश्वर आपके जीवन में देगा। The greater the sickness in your life right now, the greater the supernatural healing you are going to see. कितनी बड़ी बीमारी आपके जीवन में हो, उतना अद्भुत और अति श्रेष्ठ चंगाई परमेश्वर आपके जीवन में देगा। The greater the insults and the shame you have received in life for following Jesus Christ, the double the honor you are going to get. This is in the Bible. कितना अधिक निंदा, कष्ट परमेश्वर के लिए आप सहन करते हो, उतनी बड़ी मान्यता परमेश्वर देगा, ऐसे वचन कहता है। The Bible says, for your shame, you will get double honor. आमीन। वचन कहता है, कितना बड़ी आपकी निंदा हो, उससे दुगना आशीष और अनुग्रह आपको प्राप्त होगा। Bible says that if you are serving me, God himself has blessed our food and water and taken away sickness away from us. आमीन। यदि तुम मेरी सेवकाई कर रहे हो, वचन कहता है कि तुम्हारे भोजन, पानी और सभी बीमारियों को परमेश्वर ने दूर किया है। Now, why does God say these things over and over again in his word? क्यों परमेश्वर फिर से बार-बार यही चीज को वचन में दोहराता है? This is so that we understand who we are worshiping. क्योंकि ताकि हम समझ पाए कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं और वो कौन है। We're not worshiping a dead statue. हम कोई मृत मूर्ति की आराधना नहीं कर रहे हैं। We are worshiping the living God who created the heavens and the earth. हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जिसने पृथ्वी और आकाश और स्वर्ग को रचा। And the same one that created the heavens and the earth is the one that loves us. और उसी जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा, वही परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। In the word it says that the heavens are for the Lord, but the earth is given to us. स्वर्ग परमेश्वर के लिए है और पृथ्वी हमारे लिए दी गई है। In other words, the same one that created us and loves us has prepared all things for us. वही परमेश्वर जिसने सब कुछ हमारे लिए सृजाया है, वही हमसे प्रेम भी रखता है। Until you don't understand this fact of how great our God is, you will still try to do things in your own strength. जब तक आप ये समझ नहीं पाओगे हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो कितना श्रेष्ठ है, हम तब तक हर कमी चीजों के लिए हम फिर से या फिर हमारे सामर्थ्य में हम कोशिश करते रहेंगे चीजों को करने के लिए। It's like, imagine if you have one of the fastest cars in the world. ऐसा सोचिए आपके पास अति तेज कार है आपके पास इस दुनिया की। Imagine you have a Ferrari, which is very fast. एक फरारी है आपके पास जो अति तेज है। And instead of sitting in that Ferrari, turning it on and driving it, इतना की नहीं कि आप उस गाड़ी में बैठकर या फिर फरारी में बैठकर शुरू कर जब तक आप उसको नहीं चलाए, instead of doing that, you are standing in the back pushing the car. और उसके बदले अब गाड़ी के बाहर बैठ के उसे धक्का दे रहे हैं। God has made all things in such a way for us that we will move forward with speed and prosperity. परमेश्वर ने हर एक चीज हमारे लिए इस प्रकार रची है कि हम गति और आशीष के साथ आगे बढ़ेंगे। But we decide to do things with our own strength, with our own mindset, and that is where we fail every single time.
लेकिन हम ऐसा हमेशा कोशिश करते हैं कि चीजों को हम अपने सामर्थ और हमारे अपने कोशिश से हम करें, जहां हम पराजित हो जाते हैं। Praise the Lord. That is why God wants to make sure that when He does something for us, He wants to make sure we know that He is the giver and He is the source of all things in our lives. हमें तो इसीलिए परमेश्वर जब कभी हमें कुछ देता है, वही हमारे आशीष का श्रोता है और वही हमें देता है। So if you have tried over and over again and you keep on failing, I tell you right now, the problem is not in God, the problem is in you. यदि आप में घमंड है और आप बार बार पराजित हो जाते हो, तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, कमी परमेश्वर में नहीं, मुझ में या फिर आप में। My God, the Creator, the God of the Bible, does not fail. मेरा परमेश्वर सृजनहार और इस वचन का सृजनहार वो कभी नहीं हारता। My God, the Creator of the world, does not sleep or slumber or get tired. मेरा परमेश्वर इस जगत का सृजनहार कभी थकता नहीं, हारता नहीं और कभी फिसलता नहीं। God knows how we are. God knows at the moment we get one victory, two victory, three victories, we start to think we are the ones who created that victory. परमेश्वर ये जानता है कि जब हमें एक विजय मिले या फिर दूसरे बार विजय हो जाए, लेकिन तीसरे बार अभी ऐसे हो जाए, तो हम सोचेंगे कि हाँ मेरे सामर्थ्य है, लेकिन नहीं, वो परमेश्वर के द्वारा। And when we do get victory and we realize it is God, we seem to lose faith when victory stops in our life for a season. जब हमें आशीषें मिल जाती है और हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, तो कुछ समय के बाद आशीषें आना बंद हो जाती है और हम परमेश्वर को भूल जाने लगते हैं। We saw a couple of weeks back where God very clearly was asking us if we have the faith and if we have the courage to follow Him. कुछ सप्ताह पहले हमने देखा परमेश्वर हमसे पूछता है, क्या हमारे पास उस विश्वास है और क्या हमारे पास उस धीरज है विश्वास के लिए। We saw in John chapter 6 how Jesus clearly spoke to the people that were following Him and He told them, you are only following me because of the bread and the food I have given you. यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में परमेश्वर लोगों से कहते हैं, तुम मेरा पीछा इसीलिए करते हो, ना कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, वरना उसके लिए जिसके लिए मैं तुम्हें रोटियां देता हूँ खाने के लिए। And that is why He was talking about the bread that He was giving them. And then He started talking about the bread of life, that Jesus Christ is the true bread of life. इसके लिए परमेश्वर रोटियों के बारे में बात कर कर फिर से उन्होंने कहने लगे, मैं जीवन का रोटी हूँ, जिसे पाकर तुम तृप्त हो जाओगे। This you can read in John chapter 6, verse 26, where Jesus says that you only follow me for the food. ये इसके बारे में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय के 26 में पढ़ते हैं, जहाँ परमेश्वर उनको रोटी के बारे में बात करते हैं। And later on, Jesus talks about the bread of life, and He says that He is the bread and we have to eat Him. और बाद में परमेश्वर वहां कहते हैं कि वह जीवन की रोटी है और हमें परमेश्वर से खाकर तृप्त होना चाहिए। And that His blood has to be drank, which is the blood of the sacrifice on the cross. और उनके लहू से हमें तृप्त होना चाहिए, उस लहू को जो काल्वरी क्रूस पर परमेश्वर ने हमारे लिए बहाया। So here Jesus was saying, don't just follow me for the benefits. यहाँ परमेश्वर ऐसा कहना चाहते हैं कि मेरा पीछा सिर्फ इस पृथ्वी के चीजों के लिए या फिर कुछ पाने के लिए मत कीजिए। Don't just follow me for the victory in your life. मेरा पीछा इसीलिए ना करो ताकि जीवन की कुछ विजयों को या फिर श्रेष्ठताओं को प्राप्त कर सके। Because the moment you eat me, the moment you take me into your life, you will be victorious in every area. इस जीवन में जिस क्षण तुम मुझे प्राप्त करोगे, मुझ में से खाओगे, जीवन के हर क्षेत्रों में तुम विजय प्राप्त करोगे। In the book of Psalms, it says that a good man leaves an inheritance for his grandchildren.
भजन संगीता में ऐसे कहता है, एक अच्छा व्यक्ति अपने सभी संपत्ति श्रेष्ठता अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर जाता है। Sorry, I'm not sure if it's Book of Psalms or Book of Proverbs. I believe it's Book of Proverbs. सॉरी, ये भजन संगीता से नहीं, नीति वचन में कहा गया है। And it says that a good man leaves an inheritance for his grandchildren, but the wicked man, the money he makes, will be given to the good people. वो वचन ऐसा कहता है, एक धनी या फिर धार्मिक व्यक्ति अपनी संपत्ति अपने पीढ़ियों के लिए, पोते पोतियों के लिए छोड़ जाता है, लेकिन एक अधर्मी व्यक्ति भले व्यक्ति के लिए वो सब छोड़ जाता है। In other words, if you simply follow Christ for the benefits and for prosperity, you will not be able to leave that for your children. सरल शब्दों में, यदि अपनी संपत्ति और उसका आप पीछा करोगे तो अपने बच्चों के लिए या फिर पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़कर नहीं जा पाओगे। And if you go through wicked ways to make money, you will make the money, but that money will be enjoyed by the people of God. अधार्मिक मार्गों से यदि पैसा कमाने की कोशिश करोगे, निश्चित रूप में आप पैसा कमाओगे, लेकिन वो दूसरों के लिए आप छोड़ जाओगे, जो उसका अनुभव या फिर भोग आप नहीं कर पाओगे। The Bible also says that many of us make money, but we put that money in bags that have holes in them. वचन ये भी कहता है, हम में से कहीं पैसे तो कमाते हैं, लेकिन उस थैले में हम डालते हैं जिसमें छेद हो और वो पैसा लूट जाता है। And you must have noticed this in your life. और ये आपने आपके जीवन में ध्यान दिया होगा। When you have not accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, you might be still making money, but as it comes, it goes away. आपने को ध्यान दिया होगा आपके जीवन में, जब यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके आपने जीवन में नहीं स्वीकारा है, आप कमाते तो हो लेकिन पैसा कोई और अनुभव करता है। You start making wrong investments. हम गलत सांपत्तिक कार्यों को निर्णय लेते हैं। People start to cheat you. लोग आपको धोखा देना शुरू करते हैं। Your car breaks down. Your car breaks down. आपके कार में जल्दी खराबी आ जाती है। The things in your life that you're supposed to get as a benefit are no longer beneficial to you. आपके जीवन में जो आशीष आपको प्राप्त करनी चाहिए वो आशीष के रूप में नहीं आती है। This is what happens when we do things with our own strength and our own mind. ये तभी होता है जब हम अपने श्रेष्ठता में या फिर अपने बल में कार्यों को करने लगते हैं। See, Jesus was so aware of this, and he still is today, that he actually got angry with those who constantly call him Lord, Lord. परमेश्वर इस चीज में क्रोधित हुए जिसके बारे में तब भी और अब भी वो जानते हैं, जो निरंतर प्रभु प्रभु करके उनको पुकारते हैं। And that's why he turns to his disciples now, the ones who are there with him, and he says, "Do you also want to leave me?" इसके लिए अपने चेलों की ओर मुड़कर परमेश्वर कहता है, क्या तुम भी मुझे छोड़ना चाहते हो? And we saw last time how Peter gives him the answer that all of us should be giving when we go through any kind of trouble. हमने गए बार देखा जैसे पतरस से कहता है कैसे हमें होना चाहिए जब जीवन की हर कठिनाई या फिर परिस्थितियों से हम गुजरते हैं। He says in verse 68 in John chapter 6, "Where will we go, Jesus? Only you have the words of life." यूहन्ना 6 के 68 में हम ऐसा पढ़ते हैं, कहाँ हम तुझे छोड़कर जाएंगे परमेश्वर, तुझी से हमारे जीवन की हर सोते की शुरुआत है। When you come to that point in your life where nothing else matters but being with Jesus Christ, that's when your true success will start. अब जीवन के उस मार्ग पर पहुंचोगे, चौराहे पर पहुंचोगे, जब जीवन में कुछ कार्य नहीं होता परंतु सिर्फ परमेश्वर से ही कार्य होता है। That's when your family will be truly united and you will see that you are moving forward together as a family. तब परिवार में एकता होगी और आप परिवार समेत आगे बढ़ते हुए देख पाओगे अपने जीवन में। When I'm talking about success, I'm not talking only about prosperity with money. जब जीवन के विजेता के बारे में बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ भौतिक
या फिर पैसे के मामले में नहीं बात कर रहा हूं, because money might come, money might not come. पैसा आएगा, पैसा शायद नहीं आएगा, But what you have will be perfect for that situation and that time in your life. आमीन। जो आपके पास है वो सर्वश्रेष्ठ और सही होगा उस समय के लिए, उस परिस्थिति के लिए। This Praise the is Lord। true prosperity in Jesus Christ. यीशु मसीह में यही सही आशीष है और आशीष की बढ़ोतरी है। This is when God's favor starts to fall upon everything you do. यही परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आता है हर क्षेत्र में और हर चीजों में, जो कुछ भी आप करते हैं। But for you to see God's hand in your life and God's favor in your life, you first have to realize that you truly need Him. तभी उस क्षण में जब आपको समझना है कि परमेश्वर का हाथ है, परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर की आशीष की जरूरत होगी, करुणा की जरूरत होगी आपको उस समय ये समझने के लिए। So just like in the life of Gideon, he started with 32,000. गिदेन के जीवन के समान ही जब उसने 32,000 के साथ शुरू की, Then God told him to reduce that and he left. He asked people, if you're afraid to fight, please leave now. और 32,000 में से कहा यदि तुम्हें डर लगता है तो तुम इस समय छोड़कर चले जाओ। And from 32,000, he ended up with 10,000. 32,000 से वो 10,000 में समेट गया। And then he took another test with his army and it went from 10,000 to 300. और फिर से एक और परीक्षा की गई, तब 10,000 में से 300 में समेट लिया परमेश्वर ने। We will go now to Judges chapter 7, न्यायों का पुस्तक 7वां अध्याय। where we are reading about the story of Gideon. हम गिदेन के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं वहां पर। And we saw now that the first filter has gone, which is the filter of fear. पहला छानना खत्म हो चुका है, जो है भय का छानना। In other words, if you are afraid to follow Jesus Christ, if you're afraid to speak about him, then God cannot use you for victory. दूसरे या फिर सरल शब्दों में, यदि आप परमेश्वर के बारे में भयभीत हो या फिर परमेश्वर के बारे में दूसरों से कहने से डरते हो, तो परमेश्वर की विजय आपके जीवन के द्वारा नहीं हो सकती है। If you're afraid of what your family will say, यदि आपको डर लगेगा कि मेरा परिवार क्या कहेगा, if you're afraid about what your friends will say, तो आपको शायद डर लगेगा कि आपके दोस्त क्या कहेंगे, then you are not qualified to be part of God's army and part of God's victory He's preparing for you. तो आप परमेश्वर की सेना के योद्धा या फिर सेना के में होने के योग्य नहीं है, जिस विजय के लिए वो आपको तैयार कर रहा है। I'm not saying that you will no longer be in Jesus Christ. मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप आगे जाते आप मसीह में कभी नहीं रहोगे। I am not saying that you will not enter heaven. मैं ये नहीं कहता कि आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाओगे। But what I am saying is that that fear that you have of people will stop you from moving forward in your walk with Jesus Christ. लोगों का भय जो आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको रुकावट बनता है, वो आपको रोकेगा परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के लिए। And if you don't move forward, I tell you right now, you will end up dying in your faith. यदि आप आगे नहीं बढ़ सके तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप आपके विश्वास में ही मृत्यु प्राप्त कर लोगे। Because the Bible says that the children of God go from faith to faith. क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर के लोग विश्वास से विश्वास में अधिक आगे बढ़ते जाते हैं। We go from glory to glory. That means we experience more and more of Jesus Christ in our lives. उसका मतलब ये है कि हम मसीह में अधिक अधिक महिमा में परमेश्वर का अनुभव हम करते जाते हैं। And if you are afraid, you will not experience that glory. You will not experience that growth of faith. यदि आपको डर लगता है तो आप मसीह के उस आशीष को या फिर विश्वास को महिमा में आप अनुभव नहीं कर पाओगे। And at that point, there is a very large, very big chance that you will end up denying the faith in Jesus Christ. तो बहुत बड़ा
हो सकता है ऐसा कि आप अपने विश्वास को त्याग दो और परमेश्वर के विश्वास में आप पीछे मुड़ जाओ। You see, Christ is strong enough to keep you in the faith, but you have to be the one that takes away the fear out of your heart. परमेश्वर सामर्थशाली है आपको विश्वास में रखने के लिए, लेकिन आपको अपने भय को हटाना होगा। Let me share something with you before we continue. मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। You remember when Jesus Christ was praying in the Garden of Gethsemane? आपको याद होगा या फिर याद करेंगे कि परमेश्वर गत्समने में प्रार्थना कर रहे थे। He was there praying in agony, and he knew that he was now about to face the cross. वो दर्द में थे, पीड़ा में थे और इस बोझ पे थे कि वो क्रूस का सामना करने वाले हैं। And the last words he told Peter before he was taken to the cross was, I have prayed for your faith. और अंतिम चीज जो परमेश्वर पत्रस से बात करता है, वो क्रूसित होने के लिए लेके जाने से पहले, मैंने तुम्हारे विश्वास के लिए प्रार्थना की है। Because God knows that when we don't feel Jesus close to us, our faith is shaken. क्योंकि परमेश्वर चाहता है जब हम यीशु को अपने पास अनुभव नहीं करते, तब हमारा विश्वास डगमगा जाता है। When the problem comes and Satan is just throwing darts at you all the time, our faith is shook. जब समस्याएं आती है और शूल के तौर पर शैतान समस्याएं बेचते जाता है, हमारे विश्वास डगमगाने लगती है। So Jesus Christ has prayed that that faith we have will not be shaken. यीशु मसीह ने प्रार्थना की है कि वो विश्वास जो हमारे पास है कि वो कभी ना डगमगाए। But the more problems we face, the more we will pray. अधिक समस्याओं का सामना हम करेंगे, तभी हम अधिक प्रार्थना करेंगे। The more हालेलुया। people reject us, the more we will fast. जितना लोग हमें ठुकराएंगे, उतना हम उपवास में प्रार्थना में समय बिताएंगे। The more pain we are suffering, the more we will proclaim the name of Jesus. जितनी पीड़ा और समस्या का हम सामना करेंगे, उतने हम परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर के बारे में हम घोषणा करेंगे। This is how you go from faith to faith. इसी प्रकार आप विश्वास से विश्वास में आगे बढ़ते जाओ। In this time of trouble, where you have nothing, when you're afraid, this is when God starts to work in your life. जीवन की इस समस्या में जब आपके पास कुछ नहीं है और आपको डर लगता है, तभी परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। Let's go to Judges chapter 7, न्यायियों का पुस्तक 7वां अध्याय, and let's read verse 3. हम उसका 3रा वाक्य पढ़ेंगे। That's why you are to ask in full view of the soldiers. Whoever is afraid or is trembling may go back from Mount Gilead and return home. So 22,000 soldiers left and 10,000 remained. इसीलिए तू जाकर लोगों से यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो, वो गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। Then verse 4. और चौथा वाक्य, There are still too many soldiers, the Lord told Gideon. Bring them down to the water and I'll refine them for you there. Therefore, when I say to you, this one will be going with you, he will go with you, but no one may go about whom I tell you, this one won't be going with you. चौथा वाक्य, फिर यहोवा ने गिदयोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सौते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा, और जिसके विषय में मैं तुझसे कहूं यह तेरे संग चले, वह तो तेरे संग चले, और जिसके विषय में मैं कहूं यह तेरे संग ना जाए, वह ना जाए। Amen. Then verse 5 and 6, so he brought his soldiers down to the water, and the Lord told Gideon, you are to cull out everyone who laps up water with his tongue like a dog from everyone who kneels
to drink. 5वां वाक्य, तब वह उनको सौते के पास नीचे ले गया। वहां यहोवा ने गिदयन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ कर कर पिए, उनको अलग रख, और वैसे ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। And then verse 6, the contingent of soldiers who lapped water with their hands to their mouths numbered 300 men, but everyone else kneeled to drink water. जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ कर कर पानी पिए, उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिए। Then the Lord told Gideon, verse 7, I am going to deliver you with the 300 soldiers who lapped by giving the Midianites into your control. Send everyone else back to their own homes. तब यहोवा ने गिदयन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और अन्य सब लोग अपने स्थान को लौट जाए। Now look at this interesting thing over here. The first filter God uses is a filter where He gives you the choice to leave if you're afraid. पहला फर्क ना परमेश्वर ऐसा दिया कि उनको दिया कि डर गए हो तो छोड़कर चले जाइए। But the second filter was a filter where He tested you to see if you were focused on the mission. और दूसरा फर्क ना ऐसा था कि तुम्हें तुम्हारे मिशन पर तुम्हें ध्यान है या कि नहीं, उसमें से परमेश्वर ने फरका उनको। And depending on the amount of vigilance or focus you have on your calling upon your life, God will either say yes or no to go into battle. और तुम्हारी ध्यान बटाने की उस क्षमता में परमेश्वर ने उसे देखकर कहा कि तुम में से इतने रह सकते हो और वापस बाकी लौट कर जाइए। We will go into this further next week about the importance of being vigilant, but just understand for today that the first filter was your own choice out of fear. The second filter is God's choice based on your focus. परीक्षा परमेश्वर का फरकना, पहला तुम्हारा भय था, इससे परमेश्वर ने फरका और तुम्हें अलग किया। दूसरा तुम्हारा खुद का निर्णय है कि रहना है कि नहीं रहना है, उसमें से परमेश्वर ने फरक कर अलग कर दिया। That's what Bible says, many are called, but few are chosen. आमीन। इसके लिए वचन कहता है, बुलाए तो बहुत है, लेकिन चुने गए हुए हैं बहुत ही कम है। Praise the Lord. So everyone has a calling to receive Jesus Christ. सबको बुलावट है यीशु मसीह को जानने के लिए। And everyone that receives the calling is been told, if you want to leave, if you're afraid, you go ahead and leave, no problem. जो कुछ भी बुलावट सुनकर आए हैं, उनको ऐसा निर्णय करने का मौका है। तुम्हें डर लगता है, भय लगता है, तुम छोड़कर जा सकते हो। If you cannot take the pressure and the insults and the hardships, you please leave. Christ does not need you. यदि तुम्हें निंदा सहन नहीं कर सकते हो, परीक्षा सहन नहीं कर सकते हो, तो छोड़कर जाइए, क्योंकि परमेश्वर को तो आपकी जरूरत नहीं है। But because Jesus loves you, He still keeps on offering you blessings, still keeps on protecting you, still keeps on having the door open for you to enter. परंतु परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, इसके लिए आशीषें देता है, जीवन में बढ़ोतरी आती है और जीवन में आप आगे गति करते हुए बढ़ते हुए जाते हो। Once you have decided to follow Christ, then He will see how serious you are. एक बार यीशु का पीछा करने का निर्णय आप करते हो, तब परमेश्वर देखेगा कि कितने आप गंभीर इस विषय में हो कि नहीं। Once you have gone past that fear of what people will say, then God will see if you're ready to carry the blessings and carry the anointing He wants to put over you. एक बार उस डर का हम सामना कर पाते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि नहीं, उसे पार करने के बाद परमेश्वर हमें आत्मिक आशीषें, आत्मिक कार्यों के लिए, आत्मिक चीजों के लिए हमें जीवन में उपयोग में लाने की कोशिश करेगा। And then you will have the test of the focus in the Word of God or focus on the things of the world.
उसके बाद हमें वचन में ध्यान बटाने की परीक्षा और वचन में ध्यान रखने की परीक्षा में परमेश्वर आगे बढ़ाएगा। And God will take the very few with the very small knowledge and use them to defeat armies. और परमेश्वर कुछ ही कमी या फिर कुछ ही झुंड में लोगों को चुनेगा ताकि उनके वचन को लेकर सेना का सामना कर पाए। So next week we हालेलुया। will go deeper into this idea of being vigilant. और अगले सप्ताह में ध्यान पूर्वक रहने के लिए चौकित रहने के विषय के बारे में हम और गहराई में पढ़ेंगे। We will see the idea of being focused in the Word of God and focused on your calling if you actually want to receive the victory. हम इस चौकित रहकर हम परमेश्वर में ध्यान बटाकर क्रूस की ओर ध्यान बटाकर कैसे हम जीवन की ओर विजय की ओर जा सकते हैं उसके बारे में हम ध्यान बटाएंगे। If you're not focused on the calling and the purpose of God in your life, He Himself will take you away from that calling. आपके बुलावट के बारे में, आपके निर्णय के बारे में यदि आपको खुद ही एक आत्मविश्वास या फिर धैर्य ना हो तो उसमें से कैसे आपको अलग करेगा, हम उसके बारे में देखेंगे। We will see this next week, so continue with us. But for today, just keep one thing in mind, is that you have to make sure you are focused and without fear for the great things that God is about to do in your life. हम आगे सप्ताह इसके बारे में और पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए ये हम रखेंगे परमेश्वर का भय और चौकित रहना और कैसे धैर्य के साथ आगे बढ़ना, इससे परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या कर सकता है, इसे हम आज हमारे साथ लेकर हम आगे जाएंगे। Jesus is asking, are you afraid? मसीह आपसे पूछता है, क्या आप डरे हो? He's not condemning you. वो आपको परीक्षा में नहीं डाल रहा। He understands your fear. आपके भय को वो समझता है। So if you want to leave and not do what He has called you to do, you are free to do that. यदि आपको जाना है या फिर उस बुलावट के हिसाब से आपको कुछ कार्य या फिर आगे नहीं बढ़ना, तो आप छोड़कर जा सकते हो। You are not losing your salvation, आपकी रक्षा को आप नहीं खोओगे, but you are in danger of losing your faith because it is no longer moving forward. लेकिन अपने विश्वास को खोने के लिए उस खतरे में आप पड़ोगे, क्योंकि उस विश्वास में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। Your faith is like a muscle. आपके शरीर के एक पुष्टि के जैसे समान है या फिर एक मसल के समान है। If you don't exercise that faith and make it grow, it will lose its strength. अपने उस ताकत को, विश्वास को यदि आप उपयोग में नहीं लाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे, तो उसकी शक्ति और सामर्थ्य कम होते जाएगी। So I encourage you today to truly enjoy every single challenge. इसके लिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि जीवन में आने वाली हर आत्मिक समस्याओं का उत्तेजना के साथ सामना कीजिए। Every challenge right now in your life, every fear in your life is an opportunity for you to exercise that muscle of faith. आमीन। हर चुनौती, हर समस्या अपने उस मसल के सामर्थ्य के समान, शक्ति के समान अपने विश्वास की शक्ति को उपयोग में लाइए, अधिकार में लाइए और उसका सामना कीजिए। And I guarantee you will overcome anything you are facing. आमीन। मैं वायदा करता हूं आप उसका पार कर पाओगे, जो कुछ भी परिस्थिति या फिर समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं। And that same faith that you have exercised, you will use in the life of others around you. और वही विश्वास और सामर्थ्य दूसरों के लिए आपके जीवन के द्वारा आप उस विश्वास को उपयोग में ला पाओगे और श्रेष्ठ हो पाओगे विश्वास में। Jesus has been reminding me about one thing for the past few weeks. यीशु मसीह पिछले कुछ सप्ताहों से मुझे एक चीज के बारे में याद दिलाते आ रहे हैं बार बार। He reminds me of that verse where he says, "Follow me and I will make you fishers of men." परमेश्वर मुझे इस वाणी के या फिर वचन के बारे में याद दिला रहा है, मेरा पीछा कीजिए और लोगों को पकड़ने वाले मछुआरे बना दूंगा मैं तुम्हें। That's the purpose why you know him. वही उद्देश्य है कि हम मसीह को जानते हैं। He will make you fishers of men. वो तुम्हें
मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बनाएगा। He will increase your faith so you can pray and set people free. वो तुम्हारे तुम प्रार्थना लोगों को छुड़ा सको। He Praise will Lord. increase you in wisdom so that people come to you with the questions of life and you will give them solution. वो तुम्हारे विश्वास को और ज्ञान को बढ़ा सकेगा ताकि लोग तुम्हारे पास आए और तुम उस सवाल का जवाब दे पाओ और उसका सामना कर पाओ। In this world of turmoil and corruption and darkness, you will have the words of peace. इस अंधकार भरी इस दुनिया में, इस धोखा देने वाली इस दुनिया में और हर तरह की अंधकार से भरी इस दुनिया में लोगों को शांति की वाणी या फिर वचन देने के लिए आपको परमेश्वर सामर्थशाली बनाएगा। In the situation where there is no hope, you will have the words of hope. Amen. Praise the Lord. जहाँ आशा की किरण दिखाई ना दो, वहाँ एक आशा का संदेश परमेश्वर तुम्हें बनाकर भेजेगा। This is the beauty of being a follower of Jesus Christ. यही परमेश्वर का चेला बनना या फिर परमेश्वर की अनुयायी बनने का सौंदर्य या फिर सुंदरता है। This is the success and prosperity Jesus promises us. यही आशीष और आशीष की बढ़ोतरी का वायदा परमेश्वर हमें देता है। Praise the Lord. Are you enjoying it today? क्या आप उसका आनंद उठा रहे हो? If you're not, it's time to surrender again to Jesus Christ. यदि आप उसका आनंद और लाभ नहीं पा रहे हो, तो अपने जीवन को एक और बार परमेश्वर की ओर समर्पण कीजिए। Praise If the Lord. you've never surrendered to Him, surrender to Him right now. यदि अपने जीवन को कभी समर्पण ना किया हो, इस क्षण अभी समर्पण कीजिए। Even if you don't understand anything about Jesus Christ or the Bible, just surrender to the name of Jesus right now. यदि यीशु मसीह को नहीं जानते, वचन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, बस अपने आप को समर्पण कीजिए, सौंप दीजिए परमेश्वर की ओर। Praise the Lord. Hallelujah. Ask Him into your life परमेश्वर को अपने जीवन में न्योता दीजिए। and just say, I just cannot do this with my own strength anymore. परमेश्वर, मैं अपने आप के स्वामर्थ के द्वारा कुछ नहीं कर सकता अपने जीवन में। I need you to take over everything that has to do with my life. मेरे जीवन के हर क्षेत्रों के ऊपर आप कार्य कर परमेश्वर। Even if you know Jesus or you don't know Jesus, this prayer will work right now. चाहे आप यीशु को जानो या नहीं जानो, इस प्रार्थना आपके जीवन में कार्य करेगी। I'm हालेलुया। expecting a testimony from all of you. मैं एक गवाही का आशा रखकर मैं आप सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे।